So that is a book. Should we be opening it? Trailer देखा आपने ना बोलिए. All right, ladies and gentlemen, to of course give me a little bit of bravado, to give me a little bit of himmat, I'm going to request a couple of wonderful people to join me on the stage at this point. Sabse pehle, he's not just the producer of the film, he's also a man behind a legacy of cinema. All right, ladies and gentlemen, he's given us kamal ki filmein jaise ki Omkara ho, Special Chabis ho, Drishyam ho, Guest in London ho, ya Raid ho. Please put your hands together for Mr. Kumar Mangat Pathak. Please, thank you, warm welcome. Thank you, sir. Please join us. Thank you. Please do just stand next to this box, but we can't open it. Thank you so much. Ladies and gentlemen, the second gentleman that I'm going to invite on stage. Yeah, all that love. Thank you, Imran. Please, please. You stand next to that box. I'm not going to do that, okay? You stand closer to it. Thank you, you're very brave. All right. Up next, the actress, as I said, who wooed us on television through her excellent performances and now is winning hearts in Bollywood with her recent performance in The Big Bull that was applauded by one and all. Please put your hands together for the wonderful and stunning Nikita Datta, ladies and gentlemen. Hi, Nikita. Could you please join us on the stage? You look fabulous. You were fabulous on the trailer. Hi. I liked how we got color-coded today because we said, you know, the set's going to look like this. Nice, nice. She's my girl. All right, ladies and gentlemen, once again, welcoming back on the stage, JK, writer and director, Dibuk. Please put your hands together and welcome him once again. Thank you. Thank you. Please, please, please. On this side, this is a request. देखिए मैं इस बॉक्स के पास बिल्कुल नहीं आ रही लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है all my friends photographers especially from the press you'd like to come ahead take your shots at this point. This is our photo moment, yeah? So I'm going to request our guests on the stage kindly and keenly stick around the box. Please don't open the box, all right? Okay, you could look scared, you could look brave, you could do whatever you want with that box, but yes, do give our friends from the media a couple of great shots so that they can publish it in their publications tomorrow morning. All right, this is great. No, we can't. Please, please, I'm a bit scared. Can I send it back? Okay, great. Could you please take the book away, please? Thank you. Sorry, I'm a bit of a darpoke and, you know, at least Imran knows that. I came out clean, Nikita, and I believe you're also somebody who shares this sentiment. Yes, yes. All right, as we get been living in the shadows, yeah. All good? Okay. Yeah, this is a bit hot.
Jay, I'm going to start with you. All right. I just told them that you've already had fun when you directed Ezra, right? So you're doing this again. So here's my question to you. What is the fun in spooking audiences, yeah? Because anybody who saw that trailer, their heart stopped for a moment. So tell us, is it something that you get great pleasure in when you actually spook or scare an audience member? Well, I don't know whether I'm getting the fun, but it gives me a kick when you play with someone's mind when it comes to films, not in real. Correct, So correct, correct. to give the unexpected. So that gives a, you know. So I wouldn't say fun, but it's You know, they how say it that is. sadistic, Sadistic, yeah. sadistic Yeah. pleasure. No, it's also, they say that if you truly know that you're a good director when you pull off, you know, this genre. So I must say that that's a big ask. Huh? So When you have a great team with you and a set of actors and a producer backing you, I think, it gets easy. yeah. That's fantastic. Thank you so much for that. Imran, this is my question for you. I mean, you're the king of this genre. You enjoy this genre. You are the one who's very sadistic about this because you think, I don't know what it is. He actually enjoys himself. Like, मैं हमेशा इनसे मिलती हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे कहता है और डराऊंगा रुक जाओ. So it's wonderful. But tell me something. This sort of experience, do you believe in this? Has it ever happened to you in real life, or is it something that is only in the movies? Good evening, everyone. First of all, like she said, it's very surreal to be here post-COVID, but very nice to be again here with all of you in this wonderful press conference. ऐसी ही बननी चाहिए फिल्में और ऐसी ही press conferences होनी चाहिए. 2 साल का withdrawal था, but thankfully we are back. So this is a very special evening. I think इतने horror films बना के ना मैं I've started seeing things now. So I think I've become a believer. And Jay has also made me a believer. Really? But आप ये पूछ रही हैं कि भूतों को लेकर मुझे विश्वास है कि जी नहीं हाँ. नहीं होता तो ऐसी फिल्में नहीं बनाता मैं I would say I'm a bit 50-50. I'm not arrogant enough to Yeah. say that ghosts don't exist because I don't know. It's the age-old thing that if you've not seen it doesn't mean it doesn't exist. I hope they exist for the sake of my films. So I'm kind of torn. I'm a little skeptical. At the same time, I want to be a believer. But till then, till we find out if ghosts exist, we'll enjoy films like The Book. You can enjoy ghosts in your living room. Ghosts in our living room. That's quite the tagline, isn't it? It's quite a cool one, especially because we're going to watch this in the comfort of our homes. All right, I'm going to pass this on to the lovely Nikita. Nikita, let me tell this to you. Today, when I was speaking to Imran in the afternoon for an interview, he said, you know, you should meet Nikita because I confessed to him. I said, I have never watched a horror film in my life. सबसे बड़ी डरपोक मैं हूँ और मुझसे नहीं. And he said, immediately said, but you should meet Nikita. How does somebody actually have that mental makeup to go in and say, I want to do a film like this? Please explain to me, how did you do this? You know, honestly, I completely relate to you when you say that you get very scared of watching horror films because I have been exactly the same. But contrary to what a lot of people might think, doing a horror film doesn't scare you that much. Yeah, so even while I was shooting for it, I never got scared on sets for real. It was only post-shooting when it kind of kicks in. And Jaisar and Imran kind of made sure that even if I was doing fine, they used to make sure that they tell me some spooky things that are happening around. So I do get scared when I go back to the hotel after we used to shoot. So Okay. yeah, so at least the shooting part was not a stress. And also this film, I think, has made me a little brave than what I was before. Yeah. Yeah, that's amazing. Also, thanks, Imran. Like, thanks for doing that. Yeah, spooking us on the way home. Okay, this is kind of crazy. I'm going to take this, the next question to Mr. Kumar Mangat Pathak. I've already said this. यहाँ पर, I think I am your biggest fan simply because you've enabled the making of such great cinema. So, I want to ask you कि ये जो film है, इसके साथ, ये genre के साथ, आपको क्या लगता है कि audiences कैसे react करेंगी? Because you have a pulse, you know, कि audience क्या चाहती है? जो पब्लिक है उसको डरने में और डराने में बहुत मज़ा आता है. जी हाँ. ये हम लोग बचपन से फिल्में देखते आए हैं और मैं हॉरर फिल्मों का बहुत ज़्यादा फ़ैन रहा हूँ. पहले भी मैंने बनाई है
ये बहुत ही अलग फिल्म है और मेरा पर्सनल लाइफ में मैं अपना घोष से एवरी डे कहीं ना कहीं पाला पड़ता है। सच्ची? सच है, ये सच है। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते और छोड़ सकते, थोड़ा और आप बताइए। सच है। ओके मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ टावर है, ओके मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ। अचानक रात को 2 और 4 के बीच में ऐसा लगता है कोई ऊपर दौड़ रहा है, बेड चेंज कर रहा है, बच्चे खेल रहे। तो एक दिन मेरी वाइफ ऊपर वाले फ्लोरों के पास गई कि आपके बच्चे रात को क्यों खेलते हैं? तो बोले हम तो 4th फ्लोर पे 5 पे रहते हैं, उसके ऊपर वाले में रहते हैं, खाली है फ्लोर। लेकिन बोले हमारे ऊपर कोई है। धीरे धीरे पता लग रहा है कि बिल्डिंग में 8-10 जगह ऐसे रात को कोई दौड़ता है। अभी हम लोग एंजॉय करते हैं, अगर रात को कोई दौड़े नींद नहीं आती है। सर, एग्जैक्ट एड्रेस बताएंगे किधर है ये ये? ब्रुकल टावर। Oh my God, he's actually told us. Okay, I'm never gonna नहीं, buy a house there. This is that's true, for this sure. is- this is true. Oh my God, oh This is my true. God. I'm definitely not sleeping tonight. Thank you. दिस इज ट्रू। इसके अलावा भी बहुत सारे किस्से हुए हैं जो मैं अभी नहीं बताना चाहता। Sir, please काफी मत लोग डर बताइए। जाएंगे, बट अनबिलीवेबल। That's amazing. That's But- amazing. अभी हमको मजा आता है। अगर रात को 3-4 बजे कुछ ऊपर चले नहीं तो लगता है समथिंग मिसिंग। वो छुट्टी पे चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं। This is too good. Thank you so much for sharing. बहुत बहुत शुक्रिया. There's also a message from Bhushan Kumar ji from T Series. Unfortunately, उनके travel schedules की वजह से आज वो हमें join नहीं कर पाए, but he sends his warmest wishes to the team of Dibok आज के दिन. All right, ladies and gentlemen, this is the fireside chat that we promised is done. This is where we'd like to ask our friends from the media to actually ask questions to our wonderful, cast and crew on stage. If you'd like to ask a question, you know what to do. I hope भूल नहीं गए हैं हम. ये Zoom नहीं है, तो हमें सवाल नहीं भेजने किसी chat box में. You know what to do. If you have a question, please do ask us, and we will. And please direct your question to who you'd like to direct it to. All right. So with that, ladies and gentlemen. मेरा Yes. सवाल आपके सेंटर Hi. में इमरान हाय Hi. इमरान एंड निकिता, आप दोनों से मेरा सवाल है कि बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो आप दोनों के साथ जब मतलब लगा हो कि भूत हो या फिर वाकई में भूत को देखा हो? जी मेरे साथ हुआ है। जब इन्होंने कहा कि पूछा कि क्या मैंने भूत देखा है, मैंने एक्चुअली देखा नहीं, सुना है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मॉम एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थी और वो मुझे चर्च लेके गई थी एक सर्मन के लिए, और उस दिन फॉर सम रीज़न सर्मन नहीं हो पाया। हमें बताया गया था बाहर कि अंदर एक एक्सोसिज्म परफॉर्म हो रहा था। जो प्रीस्ट हैं उस चर्च के, जो हेड प्रीस्ट हैं, एक एक्सोसिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक मैं 7 या 8 साल का होऊंगा तभी, और मुझे आज भी वो आवाज़ याद है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ दावे से कि वो आदमी था या औरत थी, लेकिन बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। इट वाज अ पर्सन इन पेन। अभी लॉजिकली साइंटिफिकली आप कह सकते हैं कि ये क्या मजाक है, ये प्रॉब्ली इट इज़ सम काइंड ऑफ डिरेंज्ड माइंड और फ्रैक्चर्ड माइंड और जो भी लेकिन एक्सोसिज्म्स होते हैं, और ये एक तरह से एक बहुत ही डीप इम्प्रिंट छोड़ गया है उस उम्र से। तो मैंने हमेशा, इसलिए जब इन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि आई ऑसिलेट बिटवीन स्केप्टिसिज्म और बिलीफ। मैंने असलियत में कभी भूत देखा नहीं है, देखना चाहता हूँ। आई डेफिनेटली वांट टू। आई एम अ मेजर हॉरर फिल्म फ्रीक एंड आई ऑल्सो गॉन फॉर गोस्ट हंटिंग ट्रिप। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। रात को 12 बजे से लेके 4 बजे तक कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। तो अनफॉर्चुनेटली ये गोवा में, राइट डाउन इन द साउथ ऑफ गोवा, एक डिलैपिडेटेड होटल है, कुछ 30 या 40 साल पुराना होटल है। तो एक एक्चुअली एक इंटीग्रेशन था उस वक्त, एक प्रमोशनल का इंटीग्रेशन था। वी वर एज कंटेस्टेंट्स दी एक्टर्स। तो हमें एक बैकपैक दिया गया था, 2 कैमरा थे, एक फर्स्ट पर्सन शूट कर रहा था और एक हमारा रिएक्शन शूट कर रहा था, और हम सबको विसल्स दिए गए थे। किसी को भी डर लगे तो कैमरा क्रू 1 किलोमीटर दूर है, आप विसल सीटी बजा दो, उनको 10 मिनट लगेंगे आने के लिए। तो द सिचुएशन वाज वेरी स्कैरी। और मैं क्या, अभी तो मैं फंस गया था ना, हीरो हूँ, तो ऐसा तो नहीं लग सकता है ना कि मेरी फट रही है वहाँ पे। तो मैं जब अंदर गया तो वहाँ पे ऑब्वियसली आई हैड टू प्ले द हीरो। सो बट इट वाज द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। वो जो 4 घंटे थे मेरे, इट वाज क्वाइट
hell, but I didn't see anything. I did see something, that's a different story, मगर वो भूत नहीं था. Hi Imran, hi. Here, Kalpesh Rajgopal. She wants to, yeah. नहीं, इमरान ने तो बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो हुए हैं. मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है. मैंने सुना बहुत है, बहुत सी कहानियाँ सुनी है लोगों से जिन्होंने फर्स्ट हैंड ऐसी चीज़ें देखी हैं, बट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट माई सेल्फ. उसके बावजूद भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर है इस चीज़ को लेकर, बिना देखे हुए बहुत डर है. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस मैं हॉरर फिल्म से इतना ज़्यादा डरती हूँ. हाय इमरान. Hi Imran, this year Kalpesh Rajgopal from Maharashtra Times. इसके पहले आपने बार्ड ऑफ ब्लड एज अ वेब सीरीज स्टार्ट किया था, वो रिलीज हुआ. ये आपका पहला OTT फिल्म है. ये जो नई जर्नी आपने शुरू की है, OTT की जर्नी है, इस जर्नी को किस तरह देखते हो आप? आई थिंक हम बहुत खुश हैं कि इस फिल्म को ये एवेन्यू, ये रास्ता मिल रहा है शोकेस करने का. आई थिंक हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि थिएट्रिकल, ओरिजिनल, OTT. हम इस फिल्म के साथ ख़ास करके बहुत खुश हैं क्योंकि ये पर तो अमेज़ॉन की जो रीच है, इट गोज़ टू 240 कंट्रीज़. और इस थीमेटिकली जिस तरह अगर आपने ये हॉरर फिल्में देखी हैं यहाँ पे, आई डोंट नो इफ़ यू आर अ हॉरर फिल्म बफ, तो ये एक बहुत ही एक तरह से इंटरनेशनली एक तरह से शूट किया गया. इसके एस्थेटिक्स बहुत अलग हैं दूसरे हॉरर फिल्मों से. तो हमारा मानना है कि ऑल्सो जिस तरह जैन ने जूइश कल्चर को, उनके बिलीव्स, ऑकल्ट, सुपरनैचुरल को इस फिल्म में इंटीग्रेट किया है बहुत ही खूबसूरती से. हमें लगा कि ये सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए. और इसलिए हमें लगा कि हम इस फिल्म के लिए ये रूट इस्तेमाल करें जो OTT का है. एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग. फिल्म 29 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, हैलोवीन को. एक बहुत ही कहते हैं कि गोस्ट के लिए बहुत स्पेशस दिन है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो डिफ़ाइन करती है हैलोवीन को. आई थिंक इट्स एप्ट वॉच फॉर दैट वीकेंड. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप डरोगे, बहुत डरोगे ये फिल्म देखने के बाद. इमरान, जब आपने विक्रम जी के साथ स्टार्ट की थी फिल्म, तब जो मेन स्ट्रीम के हीरोज़ हैं वो जल्दी सुपरनैचुरल सब्जेक्ट पे अपना कंसेंट नहीं देते थे, लेकिन तब भी आपने हिम्मत दिखाई और उस समय इस जॉनर को आगे बढ़ाया. और अब जब ये जो सुपरनैचुरल है उसमें कॉमेडी का घालमेल हो गया है, जैसे स्त्री या रूही, तब आपने हिम्मत ये दिखाई कि आपने एक बहुत सीरियस किस्म के सब्जेक्ट को, जिसमें काफ़ी रिसर्च करके आई थिंक इन्होंने फिल्म बनाई है, उसमें काम करने की हिम्मत दिखाई. तो ये दोनों चीज़ आपने किस तरह से थोड़ा पागल था तभी, अभी भी थोड़ा पागल हूँ. तो जनरली जो लोग कहते हैं ना कि ये करो, तो मैं थोड़ा टेढ़ा हूँ. मेरी सोच एक तरह से थोड़ी ऑफ है. और बचपन से मैं हॉरर फिल्में देखता आ रहा हूँ. जब विक्रम ने मुझे फिल्म का ऑफ़र दिया था तभी तो पहली फिल्म मोहित ने डायरेक्ट की थी, राज 2, उसमें मैंने काम किया था. फिर एक थी डायन आई, राज 3, राज 4. इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि ये जॉनर मेरे लिए बहुत ही मैं बहुत पसंद करता हूँ इसको. और जहाँ तक कि अभी एक वेव चला है हॉरर कॉमेडीज़ का, दैट विल ऑलवेज बी अ सब जॉनर टू दिस. दिस इज़ द मदर जॉनर. अगर आप कहें कि हॉरर प्राइमरीली किस तरह कंज्यूम होना चाहिए, वो ये है, वो इसके बच्चे हैं हॉरर कॉमेडी. तो इट्स ग्रेट दैट वो भी लोग पसंद कर रहे हैं. लेकिन मेरा मानना है कि अब तक हमारे देश में ये जॉनर ठीक तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है. ज़्यादातर फिल्में नहीं बनती हैं, शायद ज़्यादातर स्टार्स इस जॉनर को समझते नहीं हैं, तो वो अपना कंसेंट नहीं देते हैं, तो बजट्स उतने नहीं होते हैं उन फिल्मों के लिए. बजट्स नहीं होते हैं तो एस्थेटिक्स, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है. मैं चाहता हूँ कि और स्टार्स हॉरर फिल्में करें, क्योंकि ये इस जॉनर का सक्सेस रेशियो बहुत बड़ा है. बहुत चंद फिल्में रिलीज़ हुई हैं, लेकिन जब भी फिल्म रिलीज़ होती है हॉरर में, वो कमाल का एक तरह से बिजनेस होता है हॉरर फिल्मों का. ज़्यादा फिल्में रिलीज़ नहीं होती है, लेकिन बिजनेस कमाल का होता है. Hi, here. Imran, this is Runa from Web Dunia. Here. Hi. हाँ, hi. बच्चन साहब हो या फिर संजीव कुमार साहब हो, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री ने देखे हैं. मैं थोड़ा अलग विचार रखती हूँ आपके सोच से.
सबसे ज़्यादा किस भूत ने आपको बचपन में डराया या इम्प्रेस किया, या फिर कौन सा भूत बड़ा ही क्यूट लगा है? आप फिल्मी भूतों के बारे में बात कर रहे हो, हाँ क्योंकि जी। असली ज़िंदगी में तो मैंने देखा नहीं है क्यूट भूत या डरावना भूत। भूत तो एक्चुअली डरावना ही होता है, क्यूट भूत मैंने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा है। भूतनाथ। एक्चुअली सॉरी, भूतनाथ का भूत बहुत क्यूट। नो आई एक्चुअली कैस्पर। कैस्पर वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर अ क्यूट गोस्ट। सबसे डरावना भूत होगा द एक्सोर्सिस्ट, द ओरिजिनल, आई थिंक 1977। आप उदास हैं, निराश हैं इस जवाब के साथ? आप ऐसा नहीं, आपको मैं हिंदी फिल्म चाहिए? डर लगता आपका है। डर लग रहा है आपको। और आपको कौन सा भूत चाहिए था तीसरा? जो आपको एज एन एक्टर बहुत इम्प्रेस करके गया हो वो भूत। आई थिंक एज अ फिल्म यही है, द एक्सोर्सिस्ट, द ओमन, साइलेंस ऑफ द लैम्स, एंथनी हॉपकिंस, हैनिबल लेक्टर, वो मेरे फेवरेट है। भूत नहीं है, बट इट वाज अ हॉरर फिल्म इन इट्स ओन राइट। शुक्रिया। इमरान, इम्तियाज़। हाय। हाय। इमरान, हम ये पूछेंगे कि कभी इमेजिन कर लिए कभी सामने भूत पड़ गया तो क्या रिएक्शन होंगे आपके? You know, I'm so desensitized to the concept of ghosts कि I probably will be entertained after doing so many films. I will be very happy भूत को देखकर कि यार my beliefs probably something is true out there. तो ये सारी फिल्में वेस्ट नहीं गई. They were actually biopics. चलिए, दुआ है जल्दी मुलाकात हो जाए आपकी। जल्दी है. Hi Imran sir. Hi. Sir, I would like to ask, like, how does it feel to get into get back into horror? Because after 3 years. Yeah. And my second question is, you have done a Raz reboot and Ek Thi Dayan also. Yeah. So how would, like, compare to those two films? Yeah. Like, what new can we expect in this one? वेल हॉरर फिल्मों के साथ ये मेरी लव स्टोरी ख़त्म नहीं होती है. मुझे लगा कि ख़त्म हो गई थी 5 साल पहले, बट ये अभी ये किस्सा और चलेगा क्योंकि जब जय ने आके ये फिल्म मुझे नरेट की. ऑल्सो आंसरिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फिल्म्स दैट आई हैव डन बिफोर. लाइक आई सेड, द वे जय ने जूइश माइथोलॉजी को, ये हमारे कल्चर से बहुत दूर है. एक तरह से हम इसके बारे में हमारी समझ बहुत कम है. उनके माइथोलॉजी, ऑकल्ट, सुपरनैचुरल बिलीव्स को लेकर मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता था. एंड आई वाज वेरी इंट्रीग्ड. मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था ये चीज़ के साथ. एंड ऑल्सो अगर आपको इन फिल्मों में डर लगा है इससे पहले, एक थी डायन हो या राज हो, दिस टेक्स द हॉरर कोशेंट 10 नॉचेस हायर. नो प्रेशर जय, लेकिन 10 गुना ज़्यादा है इसका एक हॉरर कोशेंट. एंड आई थिंक इवन द नैरेटिव स्टाइल इज़ वेरी न्यू एंड यूनिक हॉरर के लिए. Okay, thank you. My next question is to Nikita ma'am. Ma'am, please share your like post-shooting experience. Like, because you are like in sets, you all are involved in like scary shoots and scary scenes. So please tell us about your post-shooting experience. जैसे मैंने अभी कहा कि शूटिंग के दौरान इतना डर नहीं लगता, लेकिन इट्स पोस्ट दैट, एज आई सेड दैट दीज पीपल मेड श्योर आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड. तो हम जहाँ रह रहे थे शूटिंग करते टाइम, वी वर शूटिंग इन मॉरिशस, जो हमारा होटल था वहाँ पर रूम तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा चलना पड़ता था. इट वाज अ गुड 10-minute वॉक. एंड कई बार, बहुत बार हम लोगों ने रात की शूटिंग की है, बिकॉज दैट्स व्हाट द फिल्म डिमांड्स. सो कई बार ऐसा होता था कि पैकअप हो रहा है रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, तो उस टाइम पर आप वापस होटल जा रहे हो, अपने रूम की तरफ चल के जा रहे हो. तो वो मुझे उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, बिकॉज ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया गया था. तो जनरली मेरी एक तरकीब थी, मैं हेडफोन्स लगा के हनुमान चालीसा सुनते सुनते अपने रूम की तरफ जाती थी, ताकि कुछ पीछे से, आगे से, ऊपर से, नीचे से कुछ आ नहीं जाए. Okay. And my third question is to Jay sir. Sir, like, can you tell us about the challenges that we face in making horror films in India? Because like most of the audience they are interested in Hollywood horror. So like, what new things like? I feel that horror has immense potential
और इंडिया में काफ़ी अनटैप्ड है. जैसे इमरान सर ने बोला, द बजट्स लाइक द मेन स्ट्रीम स्टार्स उतना ज़्यादा हॉरर फिल्म्स नहीं करते, सो द बजट्स आर लेस एंड स्टफ. सो आई थिंक इट्स अ जॉनर विच हैज़ इमेंस पोटेंशियल. तो ज़्यादातर होम ग्रोन हॉरर फिल्म्स होना चाहिए. सो इंडिया से भी होम ग्रोन हॉरर फिल्म्स होना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर वास्ट है, काफ़ी फोकलोर है हमारा देश में. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी एक्सप्लोर द मदर जॉनर more. Well, with that, thank you. I know you had lots of questions, and I hope that you haven't asked on behalf of everybody, but thank you for your questions. Ladies and gentlemen, we're actually running out of time. We can take only 2 more questions right now. Yes, so. Okay, sir. Hat trick के बारे में बताइए, sir. या बहुत अगर हुआ तो बढ़िया है. सो वी हैव डन वी हैव पुट आवर स्वेट एंड ब्लड, और हम दिल से काम किया है, एंड होपफुली पीपल विल एंजॉय इट. सो वेटिंग, आई एम थ्रिल्ड एंड आई एम एक्साइटेड. सो लेट्स सी. No pressure, JK. No pressure. Yeah. Thank you. Yes, please go ahead. Hi all. First of all, congratulations for the fab trailer. पहला क्वेश्चन है निकिता से. इमरान की तो एक्सपर्टीज़ है ऐसी फिल्मों की, और बहुत जैसा आपने बताया भी कि वो डराने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताया उन्होंने. कुछ टिप्स दिया आपको सेट पर, कैसे ऐसी फिल्मों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जी काफ़ी एक्सपीरियंस है वो. इनफैक्ट सेट पर भी इवन दो मुझे वर्कशॉप्स दी गई थी जब हमने इस पिक्चर की शूटिंग शुरू की उससे पहले, लेकिन कई बार सेट पे ऐसे होता था दैट आई यूज्ड टू फील स्लाइटली लॉस्ट, बिकॉज एज आई सेड दिस जॉनर इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर मी. So touchwood, gladly I had Jay sir and Imran always constantly feeding me with ideas and what can be done. So there was a huge support, बहुत ज़्यादा support मिला इन दोनों से. थोड़ा जहाँ पे भी मैं अटकती थी कि क्या करना है, कैसे करना है, to how to go forward. एंड इमरान, आपको लोगों को डराने में मज़ा आता है, रोमांस करने में मज़ा आता है, इंटेंस रोल, या फिर अब जो एक्शन वाला नया अवतार दिखने वाला है उसमें मज़ा आता है? Romance is my first love, always. But of course, डरने और डराने में भी बहुत बड़ा मज़ा आता है. Thankfully no. हमने ये डिसीजन लिया है क्योंकि आई थिंक माहौल बदल चुका है कोविड के बाद. लोग जब OTT फिल्में देखते हैं, गानों का कहीं एक तरह से उसकी प्रायोरिटी कम रहती है एक फिल्म में. आप थिएटर में एंजॉय कर सकते हो, स्पेशली ऐसी फिल्में जहाँ पे आपको एक बहुत ही एक टेंस्ड मोमेंट है फिल्म में, जहाँ पे एक पोजेशन का सीन है, सडनली उसके बाद हीरो और हीरोइन बीच पे गा रहे हैं. ये शायद थिएट्रिकल व्यूइंग के लिए शायद नहीं होता था, मेरी फिल्मों में भी होता था, बट आज के ज़माने में आई थिंक वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. ये एक प्योर थ्रिल हॉरर फेस्ट है. इसमें आपको गाने नहीं दिखेंगे, lots of scares, a fantastic story, and a very well-made horror film. Yeah. And we're going to watch it on the 29th of October. मैं जानती हूँ कुछ लोगों की आवाज़ बहुत बुलंद है, आपको माइक की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन unfortunately we are running out of time. I would like to take your question as the last question. Yeah? Yeah? Do you need a mic? We'll bring it to you. You're like, मुझे माइक की ज़रूरत नहीं है. Please. Do you want a selfie? You're standing with the phone like that. I thought you wanted a selfie. Yes, I ma'am. want a selfie. You've got but a mic. I want to ask that this in Hollywood more horror movies are there. So what do you think about this movie which you have made? Hollywood से कहाँ कुछ करीब है कि कुछ आगे है, क्या different है? I think it's very different. The aesthetics of this film, the way this film has been made, is very different. हमने यहाँ पे कोई references इस्तेमाल नहीं किए हैं. It's you talk about relatability to the Indian audience. Yeah. I think this couple story is very relatable. The characters are very relatable. Of course, जो performers भी हमने इसमें डाले हैं, जो जय ने cast किए हैं, fantastic performers like Manav, Denzel, Imad, Darshana, a lot of other performers who have added great value to the film and made it more credible. I don't think we can really compare this to any particular film. It's a film in itself. You should enjoy it. It's got its own individual print. और you'll know जब आप film देखेंगे.
Did it leave any impact on you after shooting and all? Because lots of these things do impact you. It's maybe sometimes I should take scenes back with me. I've had a couple of nightmares in Mauritius, but I generally am an actor who switches on and switches off very easily. I don't take the stresses and the work pressures of the set back home. But ऐसी film है generally, and it's very taxing working in a horror film क्योंकि emotionally draining होती हैं. Because whenever there's such scenes, it demands a lot. It's very intensive. So definitely कभी-कभार मैं ये scenes वापस घर लेके जाता था, and yeah, had a couple of nightmares. Thank you. Thank you. Well, I'm glad that, Imran, it's just you, yeah? It's just you. I'm sorry. They're meeting you after so long and the questions aren't और stopping. ये सवाल मेरे मन से आ रहा है, ये इसलिए मैंने देखिए। सोचा पूछना जरूरी है Yeah. कि आपका अगर फुल फिल्मी इतिहास देखें तो आपके गाने सुपर हिट रहे हैं. अगर राजेश खन्ना के बाद रोमांटिक गानों की बात करें तो आपके गाने तालियां होनी चाहिए इस बात पे. Yes, it's true. Yes. जब आप एक्शन और हॉरर की तरफ गए ना तो वो चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं. तो नहीं, इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप मिस नहीं करेंगे. ओके. क्योंकि यहाँ आपको लगेगा कि यार अच्छा किया इन लोगों ने गाने नहीं डाले. नहीं, हम लोग आपके गाने मिस मेरा आपको लगेगा कि यार मज़ा शायद किरकिरा हो जाता. गानों के लिए एट द मोमेंट आप लुट गए, एंजॉय कीजिए. ओके. YouTube पे मिलेगा आपको. अच्छा. सावन पे भी डाउनलोड कर सकती हैं आप. आगे से लेकिन आप जरा ध्यान रखिएगा हम लोग. नहीं, डेफिनेटली ध्यान रखिएगा. I love it. नेक्स्ट टाइम एक म्यूजिकल हॉरर फिल्म बनाऊंगा मैं अगले साल. यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. Yeah, पक्का. You know what, Imran, I just want to tell you this, that maybe we met after so long, as media and as, guests on the stage today. But this vibe is something I can tell you, it's palpable, this feeling of love. So how does that make you feel? I want to close today's Q&A with that. How does it feel to actually see your friends from the media today face to face? It feels incomplete when you don't have this, when you don't have that feeling. You don't have the feeling of a film release without a press conference and without a proper film promotional plan, right? So इसमें वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई. And इंशाल्लाह ये आने वाले कल में ऐसी बरकरार रहे. जैसे कि हम रेडियो पे कहते हैं ना, फिर वही दीवानगी. So this is that दीवानगी that we're bringing to you. और hopefully फिर से मुलाकात होगी. Yeah, फिर से मुलाकात होगी. Yeah. 29th of October, Prime Video. Don't forget Dibuk. And thank you so much for joining us today, ladies and gentlemen. It's been a pleasure being here on stage with you. Once again, I give you the cast and the wonderful crew of Dibuk. Please give them a big hand, ladies and gentlemen. दोनों हाथों से, with all that love. Come on. Yes. Thank you. Thank you.